بہت پرانے زمانے کی بات ہے، بلند پہاڑوں، سرسبز کھیتوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان آباد ایک پرامن گاؤں گلستان پور اپنی سادگی اور آپس کی محبت کے لیے مشہور تھا۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جہاں ہاجرہ اپنے شوہر اسماعیل اور 3 پیاری بیٹیوں مریم، عائشہ اور زہرہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اسماعیل روز صبح سورج نکلنے سے پہلے مزدوری کے لیے شہر چلا جاتا اور شام ڈھلے تھکا ہارا واپس آتا، اور ہاجرہ گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سی کر اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ غربت ضرور تھی مگر اس گھر میں محبت، قناعت اور ایک دوسرے کا احترام ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ تینوں بہنیں بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ مریم سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی۔ عائشہ خوش مزاج اور شرارتی تھی جو ہر وقت گھر میں ہنسی بکھیرتی رہتی، اور سب سے چھوٹی زہرہ نہایت معصوم اور نرم دل بچی تھی جو ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ لپٹی رہتی۔ شام کے وقت جب اسماعیل گھر واپس آتا تو تینوں بہنیں دوڑ کر اس سے لپٹ جاتیں اور پورا گھر ان کی ہنسی سے گونج اٹھتا۔ ہاجرہ اکثر مسکرا کر کہتی، غریب ضرور ہیں مگر رب نے ہمیں ایک دوسرے کی محبت دے کر دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا کی ہے۔ اسماعیل بھی آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرتا اور کہتا، جب تک ہم سب ساتھ ہیں کوئی مشکل ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ قسمت ان کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ چکی تھی جو چند ہی لمحوں میں ان کی پوری زندگی بدل دے گا۔ ایک دن صبح سے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ دوپہر ہوتے ہوتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور پہاڑوں سے اترنے والا پانی دیکھتے ہی دیکھتے خطرناک سیلاب میں بدل گیا۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں سے ضروری سامان نکال کر محفوظ جگہوں کی طرف بھاگنے لگے۔ اسی ہنگامے کے دوران ایک اجنبی عورت جس کا نام شکیلہ تھا تیزی سے ہاجرہ کے گھر کے باہر پہنچی۔ اس کی صورت پر گھبراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بھی اوجھل تھی۔ اس نے زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ ہاجرہ باہر آئی تو وہ بے قرار ہو کر بولی، ہاجرہ جلدی کرو، اسماعیل نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ گاؤں کے دوسرے کنارے ایک اونچی جگہ پر تم سب کا انتظار کر رہا ہے۔ پانی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اگر دیر ہوئی تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاجرہ ایک لمحے کے لیے چونکی اور بولی، اگر اسماعیل نے آپ کو بھیجا ہے تو وہ خود کیوں نہیں آئے؟ شکیلہ نے اسی وقت جواب دیا، وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے صرف تمہیں اور بچوں کو اسی وقت لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ سوال کرنے کا وقت نہیں، جلدی نکلو۔ باہر سیلاب کا شور لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی بچیوں کی جان کے خوف نے ہاجرہ کو مزید سوچنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے جلدی سے زہرہ کو گود میں اٹھایا، مریم اور عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور شکیلہ کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ تیز بارش مسلسل برس رہی تھی، راستے پانی میں ڈوب گئے تھے اور ہر قدم کے ساتھ بہاؤ پہلے سے زیادہ خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ ہاجرہ بار بار اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتی اور انہیں ہمت دلاتی رہی مگر اچانک پہاڑوں کی طرف سے آنے والی ایک خوفناک موج گرجتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اگلے ہی لمحے پہاڑوں سے اترنے والے پانی کی ایک ہولناک لہر پوری شدت کے ساتھ ان کی طرف بڑھی۔ ہاجرہ نے گھبرا کر اپنی تینوں بیٹیوں کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی مگر پانی کی طاقت انسان کے بس سے کہیں زیادہ تھی۔ مریم اور عائشہ کے ہاتھ اس کی گرفت سے الگ ہو گئے اور وہ تیز بہاؤ کے ساتھ کافی فاصلے پر بہنے لگے۔ ہاجرہ دیوانہ وار چیختی رہی، مریم، عائشہ، واپس آؤ میری بچیوں۔ وہ بار بار پانی میں ہاتھ ڈال کر انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی مگر ہر بار لہریں اس کی امید اپنے ساتھ بہا لے جاتی۔ زہرہ خوف کے مارے اپنی ماں سے لپٹی رو رہی تھی اور شکیلہ کچھ فاصلے پر کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی صورت پر افسوس نہیں تھا، اس کے دل میں ایک خطرناک اطمینان تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولی، آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اب یہ خاندان کبھی دوبارہ ایک نہیں ہو سکے گا۔ ہاجرہ اپنی دونوں بیٹیوں کو تلاش کرنے میں اس قدر بے بس ہو گئی تھی کہ اسے احساس بھی نہ ہوا جب شکیلہ دھیرے سے زہرہ کو اس کی باہوں سے الگ کر کے لے گئی۔ بارش کے شور اور سیلاب کی گرج میں زہرہ کی ہلکی سی چیخ بھی دب کر رہ گئی۔ شکیلہ تیزی سے جنگل کی طرف بڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک ویران غار کے قریب جا پہنچی جہاں جنگلی جانور اکثر پناہ لیتے تھے۔ اس نے زہرہ کو ایک چٹان کے پاس لٹا دیا اور نفرت بھرے لہجے میں بولی، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو کوئی درندہ تجھے ابھی ختم کر دے گا، پھر میرے راستے کی آخری رکاوٹ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد غار کے اندر سے ایک بڑی مادہ بھیڑیا باہر نکلی۔
इसने पहले मासूम बच्ची को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इसके करीब आई। ज़ोहरा डर के मारे कांप रही थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर भेड़िए ने इसे नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी नाक से प्यार से सहलाया और फिर इसे अपने बच्चों के दरमियान ले जाकर लिटा दिया। इस तरह वो नन्ही बच्ची, जिसे मौत के हवाले कर दिया गया था, कुदरत के एक अनोखे करिश्मे के तहत एक नई जिंदगी में दाखिल हो गई। दूसरी तरफ मरियम कई मील तक बहती रही और आखिरकार एक दरिया के किनारे आ लगी, जहां रहमत शाह नामी एक शख्स लकड़ियां जमा कर रहा था। इसने पानी में बहती हुई लड़की को नजर किया तो इसी वक्त इसे बाहर निकाल लिया। पहले तो इसने रहम खाने का ड्रामा किया, मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखों में लालच चमकने लगी। इसने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं इसे पाल पोस कर बड़ा कर दूं तो एक दिन इसे फरोख्त करके बहुत सा माल कमा सकता हूं। दूसरी तरफ हाजरा सैलाब के खौफनाक रीले से किसी न किसी तरह सिर्फ ज़ोहरा को अपने साथ बचा सकी। वो इसे मजबूती से सीने से लगाए, आंखों में आंसू और दिल में बेशुमार जख्म लिए वापस अपने गांव वापस आई। अब हाजरा और इस्माइल अपनी दोनों बेटियों मरियम और आयशा को हमेशा के लिए मुर्दा समझकर गम से मुकम्मल तौर पर टूट गए थे, मगर उन्हें यह खबर नहीं थी कि किस्मत इन दोनों बेटियों के लिए दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते लिख चुकी थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए, यहां तक कि लगभग 18 साल गुजर गए, मगर हाजिरा और इस्माइल के दिलों में अपनी गुमशुदा बेटियों की जुदाई का दर्द जरा भी कम न हुआ। वो अब भी हर ईद, हर खुशी और हर दुआ में मरियम और आयशा की वापसी की उम्मीद रखते थे। उनकी सबसे छोटी बेटी ज़ोहरा, जिसके बारे में वो समझते थे कि वही सैलाब से बच गई थी, अब एक समझदार, बहादुर और नरम दिल नौजवान लड़की बन गई थी। वो अपने वालिदैन की खिदमत को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझती थी और हर मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बनती। एक शाम इस्माइल घर के बाहर खामोश बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। इसकी आंखों में नमी थी। हाजिरा इसके पास आकर धीरे से बोली, आज फिर तुम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो ना? इस्माइल ने भारी आवाज में जवाब दिया, 18 बरस गुजर गए हाजिरा, मगर दिल आज भी यही कहता है कि हमारी बेटियां कहीं ना कहीं जिंदा हैं। ना जाने किस हाल में होंगी, किसके साथ होंगी, कोई उन्हें अपना कहने वाला भी होगा वरना नहीं। ये सुनकर हाजिरा की आंखें भी भर आए, मगर उसने हमेशा की तरह सब्र का दामन ना छोड़ा। इतने में ज़ोहरा इन दोनों के पास आई। इसने अपने माँ बाप की सूरतों पर उदासी देखी तो उनके करीब बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, माँ अब्बा अब दोनों फिर परेशान हैं। रब की रहमत से मायूस ना हो, शायद एक दिन हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। इसकी बात सुनकर दोनों ने अपने आंसू ओझल करने की कोशिश की और बात बदलने की कोशिश की। कुछ देर बाद हाजिरा ने ज़ोहरा को एक जरूरी काम से करीबी गांव भेज दिया। ज़ोहरा रास्ते से गुजर रही थी कि इसी वक्त उसकी नजर एक खेत पर पड़ी, जहां लगभग इसकी ही उम्र की एक लड़की सख्त धूप में भारी पत्थर उठा रही थी। इसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, हाथ जख्मी थे और उसकी सूरत पर शदीद थकन साफ नजर आ रही थी। इसके सामने एक सख्त मिजाज शख्स रहमत शाह खड़ा मुसलसल इसे डांट रहा था। जल्दी हाथ चलाओ, अगर आज का काम मुकम्मल ना हुआ तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा बस थोड़ा सा पानी पी लेने दें, फिर मैं काम शुरू कर देती हूं। मगर रहमत शाह ने गुस्से से इसका बाजू झटक दिया और बोला, पानी बाद में पीना, पहले काम पूरा करो। यह मंजर देखकर ज़ोहरा के दिल में बेहद तकलीफ हुई। वो इसी वक्त आगे बढ़ी और मजबूत लहजे में बोली, एक बेसहारा लड़की से इतना सख्त काम लेना जुल्म है। इसे भी आराम और इज्जत का हक है। रहमत शाह ने गुस्से से ज़ोहरा को घूरा और तंजिया अंदाज में बोला, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? अपना रास्ता लो वरना अच्छा नहीं होगा। ज़ोहरा ने डरने के बजाय सुकून से जवाब दिया, ताकत का मतलब जुल्म करना नहीं होता, एक दिन हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना पड़ता है। रहमत शाह ने मजीद बहस मुनासिब ना समझी और लड़की को साथ लेकर वहां से वापस चला गया, मगर ज़ोहरा के दिल में इस मजलूम लड़की की सूरत बार बार उभरने लगी। इसे मालूम नहीं था कि यही लड़की दरअसल उसकी अपनी बड़ी बहन मरियम है, जिसे किस्मत बरसों पहले इससे जुदा कर चुकी थी और कुदरत अब खामोशी से इन तीनों बहनों को दोबारा एक दूसरे के करीब लाने की तैयारी कर रही थी। इसी शाम ज़ोहरा जब घर वापस आई तो उसका जहन बार बार इसी मजलूम लड़की के गिर्द घूम रहा था। इसने खाने के दौरान भी ज्यादा बात न की। हाजिरा ने इसकी सूरत पर परेशानी महसूस की तो नरमी से पूछा, बेटी क्या बात है, आज तुम बहुत खामोश हो?
ज़ोहरा ने धीरे धीरे खेत में पेश आने वाला सारा वाकया सुना दिया। इसने कहा, माँ, वो लड़की बहुत मासूम थी। ना जाने क्यों मुझे इसे देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा इससे कोई अजीब सा रिश्ता हो। इसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि मेरा दिल अब तक बेकरार है। हाजिरा ने गहरी सांस ली और बोली, दुनिया में बहुत से लोग मजबूर होते हैं बेटी, अगर हर मजबूर की मदद कर सको तो जरूर करना, इसलिए कि किसी का सहारा बन जाना सबसे बड़ी नेकी है। दूसरी तरफ रहमत शाह अपने घर वापस आया तो मरियम दिन भर की सख्त मशक्कत से निढाल हो गई थी। इसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर उसने कभी शिकायत ना की, इसलिए कि इसे यही सिखाया गया था कि वो इसी शख्स की मकरूज है जिसने इसे बचपन में पनाह दी थी। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी तो उसे दिन में पहली बार अपनी हिमायत करने वाली ज़ोहरा की बातें याद आने लगीं। वो धीरे से खुद से बोली, आज पहली बार किसी अजनबी ने मेरे लिए आवाज उठाई। शायद दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। इसी गांव में एक नौजवान हारिस भी रहता था जो अपने मरहूम वालिद की छोटी सी लकड़ी की वर्कशॉप संभालता था। वो मेहनती, नरम दिल और इंसाफ पसंद था। शाम के वक्त वो दरख्त के नीचे बैठा कुछ देर आराम कर रहा था कि ज़ोहरा वहां से गुजरी। इसे दिन का वाकया याद आया तो वो बेइख्तियार बोल उठी, कुछ लोग सारा दिन मेहनत करते हैं और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। हारिस ने हैरत से इसकी तरफ देखा और मुस्करा कर पूछा, मैंने क्या कर दिया? ज़ोहरा ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर तुमने भी वो मंजर देखा होता तो खामोश ना बैठते। एक बेसहारा लड़की पर जुल्म हो रहा था और किसी ने इसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। हारिस को इसकी बात बुरी तो लगी मगर इसने बहस ना की। जब ज़ोहरा वहां से चली गई तो उसके अल्फाज मुसलसल इसके जहन में गूंजते रहे। अगले दिन वो जानबूझकर इसी खेत के करीब गया। इसने देखा कि वही लड़की शदीद धूप में भारी बोझ उठा रही है और रहमत शाह फासले पर खड़ा इसे मुसलसल डांट रहा है। हारिस को इसी वक्त ज़ोहरा की बात याद आ गई। इसने दिल ही दिल में सोचा, वो लड़की गलत नहीं कह रही थी, वाकई इस मासूम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इसी लम्हे इसके दिल में मरियम की मदद करने का इरादा पैदा हो गया। वो जानता था कि रहमत शाह से सीधा मुकाबला करना आसान नहीं, इसलिए इसने फैसला किया कि पहले वो हकीकत जानने की कोशिश करेगा। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की की मदद करने का जज्बा इसके दिल में पैदा हुआ है वो दरअसल बरसों पहले अपने खानदान से बिछड़ी हुई एक ऐसी बेटी है जिसकी किस्मत अब धीरे धीरे अपने असल रास्ते की तरफ वापस आने वाली थी। अगले चंद दिनों में हारिस ने फासले से कई बार मरियम को देखा। हर रोज सूरज निकलने से पहले वो खेतों में पहुंच जाती, शाम ढलने तक मुसलसल मेहनत करती और फिर थके हुए कदमों से रहमत शाह के घर वापस आ जाती। इसने कभी किसी से शिकायत ना की, ना अपनी किस्मत को बुरा भला कहा। हारिस जितना इसे देखता इतना ही इसके दिल में इस मजलूम लड़की के लिए हमदर्दी बढ़ती जाती। एक दिन इसने हिम्मत करके मरियम से बात करने का फैसला किया। जैसे ही रहमत शाह किसी काम से गांव के दूसरे सिरे की तरफ गया, हारिस धीरे धीरे मरियम के करीब आया और नरमी से बोला, तुम सुबह से शाम तक इतनी सख्त मेहनत करती हो, क्या तुम कभी थकती नहीं? मरियम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और इसी वक्त नजरें नीचे कर ले। वो धीमी आवाज में बोली, थक तो जाती हूं मगर मेरे लिए रुकने की इजाजत नहीं। हारिस ने पानी की छोटी सी मुश्क उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कम अज कम थोड़ा पानी तो पी लो। मरियम ने पहले इनकार किया, फिर उसकी खुलूस भरी नजरों को देखकर मुश्क ले ली और पहली बार किसी अजनबी के सामने हल्की सी मुस्कुराहट इसकी सूरत पर नमूदार हुई। वो बोली, अब का शुक्रिया, आज तक किसी ने मेरी थकन के बारे में नहीं पूछा। इतने में कुछ फासले पर रहमत शाह वापस आता नजर आया। मरियम घबरा गई और जल्दी से बोली, अब यहां से चले जाएं, अगर उसने आपको मेरे साथ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। हारिस ने खामोशी से सर हिलाया और वहां से हिट गया, मगर उसके दिल में एक फैसला पुख्ता हो गया था कि वो इस लड़की को इस जुल्म से जरूर निजात दिलाएगा। उधर जंगल के दूसरे किनारे एक खामोश गार में पलने वाली आयशा अब जवान हो गई थी। वो बचपन से भेड़ियों के दरमियान पली थी, मगर उसके दिल में इंसानों जैसी शफकत और रहम मौजूद था। मादा भेड़िया इसे अपनी औलाद की तरह चाहती थी और जंगल के हर खतरे से महफूज रखती थी। आयशा जंगल की ज़बान, जानवरों की आदतें और हर रास्ता बखूबी जानती थी। एक दिन वो शिकार की तलाश में जंगल के किनारे पहुंची तो उसने कुछ फासले पर चंद मशकूक आदमियों को बातें करते सुना। इनमें से एक कह रहा था, रहमत शाह कल एक जवान लड़की को शहर के बड़े बाजार ले जा रहा है। सुना है इसकी अच्छी कीमत मिलने वाली है।
ये अल्फाज सुनकर आयशा चौंक उठी। इसे पूरी बात तो समझ ना आई, मगर इतना जरूर महसूस हुआ कि कोई बेगुनाह लड़की खतरे में है। इसके दिल में बेकरारी पैदा हुई और पहली बार इसने जंगल से बाहर इंसानों की दुनिया में कदम रखने का इरादा किया। इसे मालूम नहीं था कि जिस लड़की को बचाने के लिए किस्मत इसे जंगल से निकाल रही है वो दरअसल इसकी अपनी सगी बहन मरियम है। और इसी वक्त ज़ोहरा भी एक ऐसे सफर की तैयारी कर रही थी जो बरसों से बिखरे हुए इस खानदान को दोबारा एक दूसरे के करीब ले आने वाला था। अगली सुबह रहमत शाह ने मरियम को सख्त लहजे में हुक्म दिया, तैयार हो जाओ, आज हम दूसरे शहर जा रहे हैं। वहां एक बड़ा जमींदार अपने महल के लिए नौकरानियां खरीद रहा है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे अच्छे दाम मिल जाएंगे। ये अल्फाज सुनकर मरियम की सूरत का रंग फीका पड़ गया। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा मुझे फरोख्त न कीजिए, मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगी, अब जो कहेंगे वही करूंगी, मगर मुझे किसी अजनबी के हवाले ना करें। मगर रहमत शाह का दिल लालच से अंधा हो गया था। इसने मरियम का बाजू पकड़ा और इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। मरियम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। इत्तेफाक से इसी वक्त हारिस लकड़ी लेकर बाजार जा रहा था। इसकी नजर जैसे ही मरियम पर पड़ी, इसे इसी वक्त अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो खामोशी से इन दोनों के पीछे चल पड़ा, इसलिए कि हकीकत जान सके। दूसरी तरफ ज़ोहरा भी करीम चचा के घर से वापस आ रही थी। रास्ते में इसने देखा कि रहमत शाह एक रोती हुई लड़की को जबरदस्ती ले जा रहा है। वो इसी वक्त आगे बढ़ी और बोली, इसे कहां ले जा रहे हो? ये खुद जाना नहीं चाहती। रहमत शाह ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा मामला है, तुम दरमियान में मत आओ। ज़ोहरा ने सख्त लहजे में कहा, अगर कोई बेगुनाह जुल्म का शिकार हो तो खामोश रहना भी गुनाह है। इतने में हारिस भी वहां पहुंच गया और उसने रहमत शाह का हाथ पकड़कर कहा, पहले ये बताओ, क्या वाकई ये तुम्हारी बेटी है? अगर है तो इसे फरोख्त करने की बात क्यों कर रहे थे? चंद लम्हों के लिए रहमत शाह की सूरत का रंग बदल गया, मगर फिर वो झूठ बोलते हुए कहने लगा, ये मेरी बेटी है, मैं जहां चाहूं ले जाऊं, किसी को क्या हक है मुझसे सवाल करे। इसी दौरान जंगल की सम से एक जोरदार भेड़िए की आवाज गूंजी। सबकी नजरें इस तरफ उठ गईं। दरख्तों के दरमियान से एक नौजवान लड़की तेजी से बाहर आई, जिसके साथ वही मादा भेड़िया भी मौजूद थी। ये आयशा थी। इसने रात भर उन लोगों का पीछा किया था और अब उसके सामने मरियम को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। गांव के लोग भी शोर सुनकर वहां जमा होने लगे। हर तरफ बेकरारी छा गई। कोई इस जंगली लड़की को हैरत से देख रहा था तो कोई भेड़िए को। रहमत शाह घबरा गया, इसलिए कि पहली बार इतने सारे लोग उसके सामने खड़े थे। इसे एहसास होने लगा कि इसके झूठ का पर्दा ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा और तकदीर तीनों बहनों को एक ही जगह जमा कर चुकी थी। मगर अभी तक कोई भी ये नहीं जानता था कि उनके दरमियान खून का ऐसा रिश्ता मौजूद है जो लगभग 18 साल पहले एक खौफनाक सैलाब ने तोड़ दिया था और अब किस्मत इसे दोबारा मिलाने के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। रहमत शाह के गिर्द अब गांव वालों का हुजूम जमा हो गया था। हारिस ने बुलंद आवाज में कहा, अगर ये वाकई तुम्हारी बेटी है तो सबके सामने इसकी पैदाइश की कोई निशानी, कोई सबूत बताओ। रहमत शाह चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। इसका माथा नमी से भर गया और नजरें चारों तरफ भटकने लगे। इसी लम्हे आयशा मरियम के करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अगरचे वो बरसों जंगल में पली बड़ी थी, मगर ना जाने क्यों इस लड़की को देखते ही इसके दिल में एक अजीब सी अपनायत जाग उठी थी। ज़ोहरा भी हैरत से इन दोनों को देख रही थी। इसे महसूस हुआ जैसे वो दोनों अजनबी नहीं, इसकी अपनी दुनिया का हिस्सा है। इतने में भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाजिरा के घर की तरफ जाने वाले रास्ते की समत देखकर मुसलसल आवाजें निकालने लगा। गांव के चंद बुजुर्ग बोले, लगता है ये जानवर किसी तरफ इशारा कर रहा है, सब उसके पीछे चल। सब लोग उसके पीछे रवाना हो गए और कुछ ही देर बाद हाजिरा और इस्माइल भी वहां पहुंच गए। अपनी बेटी ज़ोहरा को इतने बड़े मजमा में देखकर वो घबरा गए। हाजिरा की नजर जैसे ही मरियम पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए रुक गई। इस लड़की की सूरत में इसे अपनी जवानी की झलक नजर आई। फिर उसकी निगाह आयशा पर गई तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बेइख्तियार बोल उठी, ये आंखें बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी हैं। इसी लम्हे गांव की एक बूढ़ी औरत शकीला, जो काफी फासले पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, घबराहट में आगे बढ़ी।
इसने तीनों लड़कियों को एक साथ देखा तो उसकी सूरत जर्द पड़ गई। वो खुद से बुड़बुड़ाने लगी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो सोचा था ये कभी दोबारा नहीं मिलेंगी। इसकी ये बात करीब खड़े लोगों ने सुन ली। हारिस ने इसी वक्त कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ सच बताओ। पहले तो शकीला ने इनकार करने की कोशिश की, मगर जब सब ने इसे घेर लिया तो उसका हौसला टूट गया। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई और 18 साल पुराना राज सबके सामने बयान कर दिया। इसने एतराफ किया कि हसद और नफरत में अंधी होकर इसी ने सैलाब वाले दिन हाजिरा को झूठ बोलकर घर से निकाला था, फिर जोहरा को जंगल में छोड़ दिया था, इसलिए ये खानदान हमेशा के लिए अलग हो जाए। इसकी जबान से सच सुनते ही हाजिरा के कदम लड़खड़ा गए। वो रोती हुई पहले मरियम को अपनी बाहों में भर लिया, फिर आयशा को सीने से लगा लिया और आखिर में जोहरा को भी अपनी बाहों में भर लिया। इस्माइल की आंखों से भी बेइख्तियार आंसू बहने लगे। 18 बरस बाद बिछड़ा हुआ खानदान दोबारा एक हो गया था। रहमत शाह ने भी सब के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया कि इसने सैलाब में मिली बच्ची को बेटी नहीं, दौलत कमाने का जरिया समझा था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इसे इसके जुल्म की सजा दी जाए और शकीला भी अपने किए पर सारी जिंदगी नदामत उठाए। आयशा ने अपनी परवरिश करने वाली मादा भेड़िए को आखिरी बार मोहब्बत से अपनी बाहों में भर लिया। वो जानवर चंद लम्हे अपनी मुंह बोली बेटी को देखता रहा, फिर खामोशी से जंगल की तरफ वापस चला गया। मरियम, आयशा और जोहरा ने फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी अपने वालिदैन की खिदमत, जरूरतमंदों की मदद और मजलूमों का सहारा बनकर गुजारेंगी, इसलिए कोई दूसरा खानदान कभी इस दर्द से न गुजरे जिससे वो खुद गुजरे थे। यूं गुलिस्तानपुर के लोग बरसों तक इस खानदान की दास्तान सुनाते रहे और हर बार यही कहते कि नफरत वक्ती तौर पर रिश्तों को जुदा कर सकती है, मगर सच्चाई, सब्र और रब की रहमत एक दिन बिछड़ों को जरूर मिला देती है।